Excel identifies that we are going to start a calculation or we are going to insert a function here. ठीक है, अब एक्सेल में देखो काम करने के काफी तरीके होते हैं हमारे. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू डू वर्क इन एक्सेल, बट इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन यू what context or in what way you are doing to complete your work or complete your calculation. ठीक है, अब जैसे मुझे इन्हें ऐड करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली गो ऑन 2000. I can manually write here 2000. Okay, plus then comes 1500 plus 3000. Okay, see मैंने इन्हें ऐड कर दिया, but what if this value changes? It didn't add any effect. Why? Because I manually wrote these. Now what if I selected this cell address? क्या होता अगर हम इनके particular cell address को select करते हैं? I want to add this cell with this cell and with this cell. Okay, now if I do any changes to the source, it will reflect there also. The reason is, see, first we wrote it manually. हमने पहले manually wrote किया था, हमने जो हमारे values थे उनको manually type करके लिखा था. But next time हमने क्या किया? Next time मैंने cell address को ही select कर लिया. I selected the whole cell address. ये पूरा cell address select मैंने कर लिया है ना, ये this cell plus this cell plus this cell. So I selected the source. Source हमारा already वहीं पर था. तो if we selected source in our formula, now if we are going to make any changes to our source, it will reflect on our total also. Now a very interesting thing to see. Now see, I'll just simply copy this formula and I will paste it here. Okay, it gave me a result for these three cells also. If I paste it here, okay, here, here, here. See, I didn't make any changes to these cells, but still it gave me an answer for these cells also. And I just simply copied. मैंने इस वाले सेल को अपना इसके अंदर कॉपी किया, इसमें कॉपी किया, इसमें कॉपी किया, then इसमें कॉपी कर लिया. So the thing happened here is referencing. ओके, रेफरेंसिंग की बात करते हैं अब थोड़ा. हमने एक सम फंक्शन या फिर एक कैलकुलेशन यहाँ पे देख ली है, तो इट्स कॉल्ड रेफरेंसिंग. नाउ एक्सेल हैज टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग. हमारे एक्सेल के अंदर दो तरीके की रेफरेंसिंग होती है. फर्स्ट इज कॉल्ड relative referencing and second is called absolute referencing. These two referencing are there in Excel, relative and absolute referencing. Now what's relative referencing and absolute referencing? दोनों के बारे में देखेंगे हम. ठीक है, फर्स्ट नो दैट बाय डिफॉल्ट एक्सेल फॉलोज रिलेटिव रेफरेंसिंग. बाय डिफॉल्ट ही एक्सेल के अंदर शुरू से रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉलो होता है. नाउ व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, अब बात करते हैं इसके बारे में. ओके, एज यू कैन सी, मैंने जब इसके अंदर एक फॉर्मूला हमारा लिखा C5 plus D5 plus E5 and I hit is equals to. So the relative position for all these cells, एक्सेल ने क्या किया, मेरे इस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने रिलेटिव पोजीशन दिया था अपने सेल एड्रेसेस का, एक्सेल ने उस रिलेटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ सी द पोजीशन हियर इज, नाउ आई एम एडिंग 3 cells to the left. Correct, I am adding 3 cells to the left. So if I copied this formula, Excel identified my relative position. एक्सेल ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे जो सेल्स हैं उसके अंदर उनका रिलेटिव पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया. एंड व्हाट्स द रिलेटिव पोजीशन? 3 सेल्स टू द लेफ्ट. रिलेटिव रेफरेंसिंग का सीधा मतलब ये है, बाय पोजीशन इट चेंजेस. हम जैसे उसका पोजीशन चेंज करते हैं, उसका रिलेटिव पोजीशन भी आपका चेंज होकर आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, सी फॉर दिस सेल ऑल्सो वी आर एडिंग 3 सेल्स टू द लेफ्ट. Here also we are adding 3 cells to the left. 3 cells to the left. What if I copy this formula and if I paste it here? See, it's showing me 0. Now why? The cell address is selected here also, but there are no values. I copied this cell and I pasted it here. Here also it's saying add 3 cells to the left. Okay, but there are right now no values. What if I add values here? It gave me an answer. So this is called relative referencing.
रिलेटिव रेफरेंसिंग का ये यूज होता है कि एक्सेल सिंपली क्या करता है, आपके फॉर्मूला के अंदर या आपके फंक्शन के अंदर या आपके किसी भी नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर आप कोई अगर सेल एड्रेस रेफर करते हैं तो उस सेल एड्रेस का रिलेटिव पोजीशन एक्सेल एंड वो फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, बाद में लेटर व्हेन वी पेस्ट दैट फॉर्मूला और वी कॉपी दैट फॉर्मूला इनटू अदर सेल्स, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन के थ्रू बाकी सेल्स को रिपॉपुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के बारे में। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है? अब रिलेटिव रेफरेंसिंग हमने देख लिया है कि एक रिलेटिव पोजीशन के बिहाफ पे या फिर एक रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे वो बाकी सेल्स को रिपॉपुलेट कर देते हैं, है ना, मतलब बाकी सेल्स को अपने आप फिल कर देते हैं। बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हम एक सेल एड्रेस को वहीं के वहीं लॉक कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसका वैल्यू उस इक्वेशन में हम कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं कि कैसे होता है। ओके, ठीक है, यहां भी हम सबसे पहले सम यूज कर लेते हैं। नाउ सम फंक्शन यूज करते हैं। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। अब एक रेंज अगर मैं सम को प्रोवाइड कर देता हूं तो वो उस रेंज ऑफ सेल्स में जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें ऐड कर देगा एंड लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट वैल्यूज को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर मैं अपने नंबर वन या नंबर टू में न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा इफ आई राइट एनी अल्फाबेटिकल वैल्यूज और एनी लॉजिकल वैल्यूज, देन एक्सेल और सम फंक्शन विल सिंपली इग्नोर दोज एंड विल ऐड ओनली द नंबर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक रेंज को सिलेक्ट कर लिया, पूरा रेंज को सिलेक्ट करने का एक सिंपल क्या तरीका होता है, डबल क्लिक ऑन अ सेल एंड देन जस्ट ड्रैग डाउन टिल लास्ट। ठीक है, जहां तक हमें सिलेक्ट करना है हम वहां तक जा सकते हैं, हमें सिंपली इन्हें बस सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन में हम गए, ब्रैकेट ओपन किया। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप बिना ब्रैकेट ओपन किए कोई वैल्यू टाइप करने लग जाते हो, जैसे मैंने ओनली सम लिखा है, मैंने ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किए बिना मैंने लिखा 20 प्लस 20 320, एंटर इट किया, इट गेव मी ओनली अ 320। नाउ व्हाई इट ओनली गेव मी अ 320? बिकॉज मैंने एक्सेल को ये बताया ही नहीं कि मैं सम फंक्शन स्टार्ट कर चुका हूं। बिफोर स्टार्टिंग एनी फंक्शन, आफ्टर टाइपिंग द नेम, फंक्शन का नाम टाइप करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज इसी से एक्सेल आइडेंटिफाई कर पाता है कि ओके, नाउ चंद्रांशु हैव स्टार्टेड द सम फंक्शन, सो इट विल गिव मी अ सम फंक्शन आर्गुमेंट विंडो। बट इफ आई डोंट प्रोवाइड एनी ब्रैकेट देयर, अगर मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगाता हूं और फिर मैं फंक्शन आर्गुमेंट ओपन करता हूं, तो उसने मुझे क्या दिया, insert function, search for a function. That means it still hasn't identified what I want to use or what I'm going to use. मतलब Excel ने भाई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है that मैं some function यूज करने वाला हूं। कैसे आइडेंटिफाई नहीं किया? बिकॉज मैंने ब्रैकेट का यूज नहीं किया। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है। ठीक है, हम हमेशा याद रखेंगे कोई भी फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। सम फंक्शन ले लेते हैं भाई, ये सम फंक्शन में हमने एक हमारा रेंज सिलेक्ट कर लिया। इफ आई हिट एंटर, इट गेव मी अ 20,500। ठीक है, नाउ व्हाट्स द रिलेटिव पोजीशन हियर, 1 2 3 4 5 6, दैट मींस आई एम एडिंग 6 cells टू द अप। 6 cells up, I'm adding these cells। ठीक है, if I just copy it here and if I paste it here also, तो यहां मेरे सम फंक्शन से क्या हुआ, मैंने सिंपली रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करके अपने सारे सेल्स को रिपॉपुलेट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है? अब मान लो भाई मुझे यहां पर परसेंटेज निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट माय परसेंटेज, तो आई विल हिट इज इक्वल्स टू कोई भी बेसिक कैलकुलेशन, कुछ भी बेसिक कैलकुलेशन हुआ या फिर आपका बेसिक फंक्शन हुआ या सिंपली आप प्लस माइनस एक कोई ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अगर कर रहे हैं तो हम इज इक्वल्स टू यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू यूज करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, सो आई विल divide this value. For divide we'll use a backslash with my total. Okay, if I hit enter, it gave me 11%. But
इफ आई कॉपी इट हेयर एंड पेस्ट इट हेयर, अगर मैं इसे यहां पेस्ट कर देता हूं तो सी हर एक में मुझे div/0 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 एक इसी का ही आ रहा है. नाउ व्हाई दिस एरर इज हैपनिंग? इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है कि हम किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जीरो से कैसे डिवाइड कर रहे हैं? अब देखो इस सेल के अंदर क्या एड्रेस था, 1 2 3 4 5. 5 सेल्स डाउन जो सिक्स्थ सेल है, मुझे उससे अपना वैल्यू डिवाइड करना है. ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन है इसका, 1 2 3 4 5. 5 सेल्स डाउन विद द सिक्स्थ सेल आई हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू. ठीक है, ओके. बट जब हमने इसको यहां पे किया, ओके, देखो यहां पे हमारा सेल एड्रेस नीचे आ गया, नीचे शिफ्ट हो गया. कैसे शिफ्ट हो गया? बिकॉज ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग. यहां भी एक्सेल कोई गलती नहीं कर रहा, इट्स जस्ट सिंपली फॉलोइंग द प्रीवियस फॉर्मूला. 1 2 3 4 5. 5 cells. After fifth cell there's a sixth cell and I have to divide my value with that sixth cell. ओके, एक और शिफ्ट कर गए हम तो ओके, एक और ये शिफ्ट नीचे हो गया. अगेन इट शिफ्टेड डाउनवर्ड, बट इन एवरी सेल देयर इज 1 2 3 4 5. आफ्टर 5 cells with the sixth cell I have to divide my value. ठीक है, मुझे इस रिलेटिव रेफरेंसिंग को रोकना है यहां से. तो वो हम कैसे रोकते हैं? बाय यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग से मैं क्या कर सकता हूं, ये जो सेल एड्रेस है F11, मैं इसे इसकी जगह पर वही कांस्टेंट बना सकता हूं. आई कैन मेक दिस सेल कांस्टेंट टू दैट पोजीशन और आई कैन मेक दैट सेल एब्सोल्यूट टू दैट पोजीशन. आप ये भी कह सकते हो कि हम उस सेल को उसकी जगह पर वहीं लॉक कर रहे हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम क्या, एक डॉलर साइन का यूज करते हैं. वी यूज डॉलर साइन टू शो दैट वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. डॉलर साइन हम कहीं भी देखते हैं तो हम समझ जाएंगे वहीं के वहीं कि भाई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज हो रहा है. अब मैंने यहां पर दो डॉलर साइन का यूज किया है. दो डॉलर साइन का मैंने क्यों यूज किया है? हमारे सेल किन दो चीजों को लेके बनते हैं? रोज एंड कॉलम्स, करेक्ट. सो $1 फॉर माई कॉलम, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू मेक माई कॉलम एब्सोल्यूट. मतलब ये कॉलम यही रहना चाहिए, रो कितनी चेंज हो जाए, कॉलम वहीं के वहीं रहेगा. मतलब जी कॉलम से एच कॉलम नहीं होगा, आई नहीं होगा, बस ये इधर ही कॉलम पे रहेगा. एंड जो दूसरा हम डॉलर साइन यूज करेंगे वो करेंगे हम हमारे रो के लिए. रो 11. नाउ आई हैव मेड दिस सेल F11, दैट मीन्स माई कॉलम F एंड माई रो 11 एब्सोल्यूट. ठीक है, इफ आई हिट एंटर नाउ एंड आई कॉपी दिस सेल डाउनवर्ड्स, तो देखो आंसर आ गए हमारे सबके. नाउ दिस सेल इज डिवाइडिंग इट दिस. ठीक है, ये वाला सेल इससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला सेल इससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी इससे डिवाइड हो रहा है. तो हमने सिंपली क्या किया, हमने हमारे इस सेल को, इस पर्टिकुलर सेल को हमने वहीं पर एब्सोल्यूट बना दिया. ठीक है, बट यहां मेरा अभी भी रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉलो हो रहा है. किस में? मुझे अपने ये वाले जो वैल्यूज हैं ये अभी भी चेंज होते रहेंगे, F5 F6 F7 F8. बट जो मेरा F11 वाला वैल्यू है मैंने उसे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग से वहीं कांस्टेंट बना दिया. ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग. जब हम इन दोनों को साथ में यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस हियर. अब यहाँ पे F5 वाले सेल में हमारा क्या हो रहा है, रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉलो हो रहा है, और F11 में हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. सो दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड रेफरेंसिंग का यूज हो रहा है अभी यहाँ पे, जहां रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आपका एक साथ यूज हो रहा है. ठीक है, बेसिक फंक्शंस देखते हैं अब हमारे. एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन. ठीक है, ये याद रखना, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन. ये जो पांच हमारे फॉर्मूलाज हैं, हमारे पांच फंक्शंस हैं, ये आपके बहुत बेसिक और काफी फंडामेंटल फंक्शंस हैं. इन्हीं फंक्शन से आपके आगे के फंक्शंस और तैयार होते हैं, है ना. डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपके बनते हैं. सम के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, सम प्रोडक्ट, सम इफ, सम इफ्स, डी सम डेव, है ना. काउंट, काउंट इफ, डी काउंट, ऐसे अलग अलग आपके सारे फंक्शंस बनते हैं इनसे. ठीक है, एवरेज वाले फंक्शंस को देखेंगे अब. एवरेज का क्या मतलब होता है भाई? नाउ लेट्स कम ऑन टू द एवरेज फंक्शन. एवरेज फंक्शन क्या करता है, मुझे एक रेंज ऑफ सेल्स का एवरेज काउंट करके दे देता है. कैसे काउंट करके देगा भाई? नंबर 1 नंबर 2, ये भी हमारा सेम वैसा ही है. returns the average arithmetic mean of its argument which can be numbers or names, arrays or reference that contain numbers. मतलब एक रेंज ऑफ सेल्स में अगर हम भाई हमारे एवरेज फॉर्मूला को एक पूरा अमाउंट या फिर ऐसे एक रेंज दे देते हैं, तो इस रेंज का वो अपने आप आपको एवरेज कैलकुलेट करके
दे देगा। सी हमारे ये सेल फ्रॉम सेल C5 टिल सेल C10 जो हमारा एवरेज निकल के आया वो है हमारा 3416.67। इफ आई रिपॉपुलेट दिस होल फॉर्मूला हेयर, सी उसने मुझे अभी भी मेरा एवरेज दे दिया। कैसे दिया? यहां भी हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉलो हो रहा है। सी दो सेल छोड़ के, है ना, आफ्टर टू सेल्स फाइंड एवरेज फॉर दीज अपर 6 सेल्स। ठीक है, यहां पर भी 2 या 3 सेल्स छोड़ के हमारा क्या करना है, हमको यहां पर इनके लिए एवरेज लेना है। सी ये सिलेक्टेड है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एंड यहां पर भी। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू काउंट नाउ। काउंट पर आते हैं। नाउ व्हाट्स काउंट? काउंट क्या करता है? काउंट से एक शब्द से ही समझ में आ रहा है हमें कि इट काउंट्स। तो किन चीजों को काउंट करेगा ये किन चीजों को काउंट करता है? ऑल द सेल्स दैट कंटेन्स नंबर, है ना, उन सभी सेल को काउंट करेगा जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पर भी हम हमारा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर हिट किया, 6 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मुझे यहाँ पे काउंट, अब जैसे मुझे एक और वैल्यू देना है, मैं यहाँ पे देखो ये वाले भी सिलेक्ट कर लेता हूं। एंटर हिट किया, अभी भी 6 सेल्स आए हैं। ठीक है, बट अगर मैं ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूं तो वो इसे भी काउंट करेगा बिकॉज देयर इज नंबर इन इट। सो वी डेलिबरेटली लेफ्ट दैट सेल। ठीक है, यहां पर बट देखो हम ये ने भी चूज कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है? ओनली 6। ठीक है, इसे भी हम सेम रेफरेंसिंग से क्या कर सकते हैं? रीपॉपुलेट। नाउ लेट्स कम ऑन टू मैक्स। मैक्स का एक बहुत सिंपल काम होता है। मैक्स जस्ट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अवर डेटा सेट। हम एक रेंज अगर मैक्स को देते हैं तो भाई जो भी हमारे डेटा सेट के अंदर, अब जैसे ये मेरा डेटा सेट है तो इस डेटा सेट के अंदर जो भी मेरा सबसे बड़ा वैल्यू होगा मैक्स मुझे वो रिटर्न करके देगा। सी 10,000। अब अगर मैं इसे रिपॉपुलेट करता हूं तो सब में आ गया 10,000 10,000, यहाँ पे आ गया 30,000। वाई? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। मिन का बिल्कुल होगा अपोजिट। मिन विल रिटर्न यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम एनी डेटा सेट। ये आ गया भाई हमारा मिन। ओके, so guys, are there any doubts regarding the Excel interface or any other basic fundamental formulas? You can write in chat box if there are any doubts regarding the basic mathematical functions and our referencing. You can write in the chat box if there are any. Okay. See, if there are no doubts, we can just continue the session. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इफ फंक्शंस के, लॉजिकल फंक्शंस। इफ फंक्शन भी काफ़ी आप कह सकते हो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमारा होता है वो हम इफ फंक्शन से करते हैं। ठीक है, इफ फंक्शन क्या करता है? आपका एक लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। वी कैन जस्ट सिंपली कॉल इफ अ लॉजिकल और अ कंडीशनल फंक्शन। ओके, why a logical or conditional function? Because if function checks whether a condition is met। क्या करेगा if function? मैं एक condition if function के सामने रख दूंगा। if function will check that condition। okay, now why it is checking that condition? if function have to make sure if that condition is met or not। मतलब if function क्या कर रहा है भाई? वो ये चेक कर रहा है कि ये जो मैंने condition सामने रखा है ये met हो रहा है या नहीं, ये condition fulfill हो रही है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बिहाफ पे, नाउ ऑन दैट बेसिस इफ द वैल्यू इज ट्रू वी कैन रिटर्न एनीथिंग दैट वी वांट फ्रॉम इफ फंक्शन, एंड इफ द वैल्यू इज फॉल्स वी कैन रिटर्न एनीथिंग दैट वी वांट इफ फॉल्स आल्सो। ठीक है, इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स जस्ट से इज इक्वल्स टू, ओके, ऐड दीज। Let's add these, okay, and just simply repopulate these cells with relative referencing is equals to same with here, enter, and this. Now as you can see it's written here, was the goal met? See now what's the goal?
Now this is my monthly goal, and I have this data set of different weeks of different salesperson, and it shows which salesperson have earned how much money through the 4 weeks of sales. Every salesperson sales data is present here. We have to find out how many salesperson completed their monthly goal. ठीक है, मंथली गोल किस किस का कंप्लीट हुआ बेसिकली, अरे एक सेल्स पर्सन ने अपना मंथली गोल कंप्लीट किया या नहीं, या फिर वीकली गोल कंप्लीट किया या नहीं. Okay, was the goal met? Now let's come on to if function. Logical test. Now what's a logical test? What is a logical test? Is any value or expression that can be evaluated to true or false. बेसिकली लॉजिकल टेस्ट का ये मतलब होता है हम यहाँ कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन यहाँ पर रख सकते हैं जो इवैल्यूएट कर सकें हम ट्रू या फॉल्स में. कैसे ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट कर सकते हैं? आई वांट टू चेक वेदर दिस सेल, क्या चेक करना है? वेदर दिस सेल is greater than or equals to this cell. Now that's a logical condition or logical value or logical expression. See, as you can see here, it returned me false. उसने मुझे false return कर दिया. तो कोई भी एक ऐसा कंडीशन जिसे हम ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे लॉजिकल टेस्ट. ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में आएंगे. अब हमें क्या करना है भाई? हमारा मंथली गोल से इन सबको कंपेयर करना है. नाउ लेट्स चेक if cell F5 is greater than or equals to. Why greater than or equals to? क्योंकि हमारा मंथली गोल है 34,000. So if a person earns 34,000, he has met the goal. But if he is earning more than 34,000, he still has earned this goal. So that is why we are using greater than and is equals to. हम इसलिए greater than और is equals to का यूज कर रहे हैं क्योंकि भाई 34,000 या उससे ज्यादा अगर हम कमा रहे हैं तो हमारा गोल हो रहा है. किससे कंपेयर करना है? इससे. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न इफ द वैल्यू इज ट्रू? आई वांट टू रिटर्न यस. ठीक है, हम डबल कोटेशन का यूज करेंगे क्योंकि एक्सेल से हमें कुछ भी रिटर्न कराना होता है तो हम डबल कोटेशन का यूज करते हैं. ठीक है, इन डबल कोटेशन इफ द अबव लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू then you have to return yes. But if the above logical test is false, you have to return no. ठीक है, if I hit enter, it gave me a yes. Okay, yes, your monthly goal, yes, it was earned, it was met. But if I just repopulate it in this whole section, ठीक है, देखो यहाँ पर 31,000 है, बट यहाँ पर still yes बता रहा है ना? तो ये क्यों बता रहा है? यहाँ पर भी हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग लग रहा है. ये देखो, इस सेल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, डाउन जाएंगे इस सेल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस सेल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस सेल को इससे कंपेयर कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है भाई? ये जो हमारा 34,000 वाला वैल्यू है हमें इसे एब्सोल्यूट बनाना है. क्यों? क्योंकि हम इस सेल को इस सेल से हम इन सारे सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो जो हमारा वैल्यू हमें रखना है वो हम रख देंगे एब्सोल्यूट. इफ आई हिट एंटर एंड इफ आई जस्ट ड्रॉप डाउन इट हियर, अगर मैं अभी से ड्रॉप डाउन करता हूं तो क्या आ गया? यस, नो, नो, यस. ठीक है, अब देखो यहां भी हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट है, यहां पर भी हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट है, यहां पर भी हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट है, और यहां पर भी हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट है. इफ आप कह सकते हो कि आपके फंडामेंटल फंक्शंस में आता है. व्हाई? क्योंकि इफ फंक्शन से भी आपके आगे काफी सारे फंक्शंस मिलते हैं. सम इफ, काउंट इफ, इफ्स, एवरेज इफ, है ना? इस तरीके के इफ एरर, इज एरर, अलग अलग फंक्शंस जो आपके इफ से भी आते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी समथिंग डिफरेंट नाउ. ठीक है, कुछ अभी डिफरेंट चीज देखते हैं हम. ठीक है, डेटा वैलिडेशन से पहले हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नाउ व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? आप कह सकते हो कि हम एक कंडीशन के बेसिस पे हमारे डेटा को फॉर्मेट करते हैं. एक स्पेसिफिक कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन के बेसिस पे हमारा डेटा होता है फॉर्मेट. सो अगर मुझे अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई करना है, सबसे पहले तो मैं ये पूरे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इन पर्टिकुलर सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है. ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन है यहाँ पर. कहाँ पर है? होम टैब पर. यहाँ पर देखना स्टाइल्स वाले में ऑप्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अब यहाँ मेरे अलग अलग कुछ रूल्स हैं. हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल्स. हाईलाइट सेल रूल्स पर आते हैं.
ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी सेल्स ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये अलग अलग मेरे रूल्स हैं। ग्रेटर देन सिलेक्ट करते हैं। नाउ फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, अब यहाँ पे मैं अपना पैरामीटर सेट कर सकता हूँ, मतलब मुझे किससे ग्रेटर देने हैं। लेट्स से फॉर्मेट ऑल द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 5000, ठीक है, सारे सेल्स हाईलाइट हो गए, थोड़ा बड़ा वैल्यू। फॉर्मेट ऑल द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 7000, अभी भी नहीं हो रहे, काफी ज्यादा है। चलो, फॉर्मेट ऑल द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 8500। नाउ यहां पर भी हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। लाइट रेड फिल में देना है, येलो फिल में हमें करना है, वी वांट टू डू इट इन ग्रीन फिल, और लाइट रेड टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर। बेसिकली हम अपने हिसाब से, हमें जैसा इन्हें अपडेट करना है या फिर जैसा इन्हें हाईलाइट करना है वैसे कर सकते हैं। अगर हम कस्टम कलर देना चाहते हैं तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट्स से आई वांट टू फिल दिस इन ब्लू, आई कैन हिट ओके, ऑल माय सेल्स आर फिल्ड विथ माय कस्टम फॉर्मेट, और एल्स आई कैन जस्ट सिलेक्ट दीज प्री डिफाइंड वंस। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने एक कंडीशन एक्सेल को प्रोवाइड किया, आई वांट टू फॉर्मेट ऑल द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 8500, so all the cells that are greater than 8500 are highlighted here. अगर हमें इनके रूल क्लियर करने हैं तो आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट ऑल दीज सेल्स, क्लियर रूल्स, एंड आई विल गो ऑन टू द क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। लेस देन में क्या होगा, लेस देन में हमारा भाई लेस देन वाला लग जाएगा, फॉर्मेट ऑल द सेल्स दैट आर लेस देन 8114, तो जितने सेल्स भी हमारे 8114 से लेस थे वो हाईलाइट हो गए। Hello. Sorry, Chandranshu sir, for interrupt. Some Yes, students yes. are saying screen is not visible. Can you please check once? Okay, screen is not visible. How, like basically, how many people are there who experiencing this issue? किस किस को like screen visible नहीं हो रहा? Let me just stop sharing my screen. I'll share my screen once again. Okay, Pradyum Kumar Roy. Okay, and share. Screen is not visible. Screen is not visible. Screen is not visible. Voice problem. Okay, voice is not getting properly. Okay, fine. Now is it okay? Is my screen visible to all of you now? Everyone, can you now hear my voice clearly, and can you now see the screen? Everyone, is the screen visible now? Voice is cracking, network issue, network issue. Yes, this session will be recorded. How to open this logical function argument? How to open this logical function argument? Okay, Vibhanshu Tiwari asked how to open this logical function argument. See, to open this logical function argument, Vibhanshu, what you have to do, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वी हैव टू ओपन दैट फॉर्मूला। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, उसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा टू बेसिकली टेल एक्सेल कि हम ये फॉर्मूला स्टार्ट कर चुके हैं। if I don't open the bracket, what it will simply do, it will tell me to insert a function. But if I open bracket for these, it will open me a logical argument function window. See, there's not a different फंक्शन आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी फंक्शन आर्ग्यूमेंट के लिए आप कह सकते हो अगर लॉजिकल फंक्शन है, कंडीशनल फंक्शन है, तो इनके लिए अलग कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो नहीं होता। हम सिंपली हर एक फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट विंडो यहां से ओपन कर सकते हैं FX बटन से। बट फर्स्ट वी विल हैव टू टेल एक्सेल दैट वी हैव ओपन दैट फॉर्मूला और वी हैव स्टार्टेड दैट फॉर्मूला। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं। अब फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। व्हाट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग? हाईलाइट सेल रूल्स देख लिया हमने, इसमें दो वैल्यूज के बिटवीन आ जाएगा एंड इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे हाईलाइट हो जाएंगे।
नाउ लेट्स कम ऑन टू डेटा बार्स। डेटा बार्स से बेसिकली आपका ये कुछ इस तरीके से डेटा फिल हो सकता है। इसमें पैरामीटर्स देखो अपने आप मैक्सिमम वैल्यू 10,252 सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि सिलेक्टेड सेल्स में सबसे बड़ा वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू वाज द 10,252. सो ऑन दैट बेसिस ऑल द सेल्स हैव डेटा बार्स। देखो यहाँ पे 9,500 में कम फील्ड है, 8,500 में और कम फील्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे 7,500 में हाफ है, फिर 5,900 में बिल्कुल ही हाफ है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डेटा बार्स लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा बार्स में हमारे अलग अलग कलर्स होते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो कर सकते हैं इसके अंदर। लेट्स क्लियर दिस रूल ऑल्सो एंड ओपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन। एक और चीज होती है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में देखो हम इस तरीके से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, जहां ग्रीन क्या डिपिक्ट कर रहा है हमारा, ग्रीन इज डिपिक्टिंग दैट दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू हियर, एंड रेड हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हियर। तो अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, अब वो अपने आप कलर का अलग अलग अपना कंडीशन या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 10,000 है, थोड़ा कम हुआ 9,500, तो कलर चेंज हो गया। देन 8,500 में और कलर चेंज हो गया, 7 में और कलर चेंज हो गया, एंड 5 में और कलर चेंज हो गया। इस तरीके से हम हमारे पूरे डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर देयर एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एवरीवन? Could you clarify what you mean by logical function argument section? Are you referring to a specific software programming language or tool, example Excel, Python? Logical function argument section simply means that we are just opening our function argument window. लॉजिकल फंक्शन बेसिकली उसका नाम होता है, ठीक है। लॉजिक इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, ये हमारे लॉजिकल फंक्शंस या कंडीशनल फंक्शंस हम इन्हें एक्सेल के लैंग्वेज में बोलते हैं। वी कॉल दीज लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस। एंड लॉजिकल फंक्शन आर्गुमेंट विंडो सिंपली मींस दैट इफ फंक्शन का आर्गुमेंट विंडो ओपन हो जाएगा, दैट सिंपली मींस व्हाट वी हैव टू पुट इनसाइड अवर आर्गुमेंट्स। लाइक इन इफ फंक्शन हमें किस किस चीजों को फिल करना होता है। ओके, इट्स नॉट एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। अविनाश कलमकार, यू आस्क्ड व्हाट यू मीन बाय लॉजिकल फंक्शन आर्गुमेंट सेक्शन। इट इज नॉट रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इट्स जस्ट इनसाइड एक्सेल। ओके, इज दिस लाइक अ कमांड? यस श्रुति, इट्स लाइक अ कमांड। बेसिकली आप एक कमांड दे रहे हो एक्सेल में, ठीक है। आप एक कमांड ही दे रहे हो एक्सेल के अंदर ताकि आपका फॉर्मूला वर्क कर सके, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम ऑन टू डेटा वैलिडेशन। भाई डेटा वैलिडेशन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हो आपके एक फीचर है एक्सेल के अंदर। डेटा वैलिडेशन से आई कैन रिस्ट्रिक्ट इनपुट्स, मतलब मेरे सेल्स के अंदर कौन सा वैल्यू एंटर हो रहा है, या आप कह सकते हो मेरे सेल्स के अंदर मुझे किस टाइप का वैल्यू ऐड करना है। तो आई कैन जस्ट सिंपली यूज डेटा वैलिडेशन टू डू दैट, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन को ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। डेटा वैलिडेशन सिंपली मींस दैट वी आर वैलिडेटिंग एनी डेटा और वी आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस और सम सेट ऑफ रूल्स। मतलब हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ सेट ऑफ रूल्स वहां पर उस सेल या पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम उसमें डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सके। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है किस टाइप का उसमें डेटा एंटर हो सकता है। बेसिकली इट मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड देयर, है ना। क्या वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, डेसिमल है, होल नंबर है। बेसिकली किस टाइप का डेटा उसमें एंटर होना चाहिए या किस टाइप का डेटा उसमें एंटर नहीं होना चाहिए, हम डेटा वैलिडेशन से वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन से हम हमारी काफी चीजों को डायनामिक भी बना सकते हैं। डायनामिक मतलब चेंजिंग हम बना सकते हैं, ओके, ठीक है। यहां पर आते हैं हमारा, ओके नाउ लेट्स कंसिडर आई हैव दिस रेंटल स्टेटस। रेंटल स्टेटस मतलब भाई एक कंपनी है हमारे पास जो सिंपली क्या कर रही है, जो रेंटल पे आपको गाड़ियां प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो रेंटल पे हम गाड़ियां वगैरह लेते हैं हमारे सारे, ओके, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक रेंटल स्टेटस है। मेरे पास अलग अलग मेक्स के मेरे कार हैं, शेवी, ओल्ड्समोबिल, फोर्ड, क्रिसलर, पॉन्टियाक, देन कम्स डॉज,
ठीक है, ये सारे मेक्स के कार हैं मेरे पास, इन सारे कंपनीज के, एंड इनके मॉडल अलग अलग हैं मेरे पास। कैवेलियर, कटलस सुप्रीम, फेस्टिवा, लेबारॉन, सनबर्ड। इट कम्स विद अ डोर ऑल्सो, ठीक है, हाउ मेनी डोर्स आर देयर, इज इट ऑटो और मैनुअल, इज इट प्रोड्यूस स्मोक, बेसिकली इट मीन्स इट्स run on petrol or is it an electric vehicle, is it convertible or not, is it in the rental or not, and what's the rate for that particular vehicle, मतलब उस particular vehicle का हमारा rate क्या है। नाउ अब मैंने एक नए इंसान को हायर किया, या लेट्स से मुझे ना इन सेल्स के अंदर सिर्फ यही वाला डेटा चाहिए, मेरा अभी कोई डेटा इसके अंदर चेंज नहीं होगा। आई डोंट वांट टू चेंज माय डेटा, आई सिंपली वांट टू रिकॉर्ड apart, I only want to record from these options: Chevy, Oldsmobile, Ford, Chrysler, Pontiac। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई कंपनी या ब्रांड ऐड होता है तो मैं वो नहीं ऐड करना चाहता। सो फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द सेल्स आई वांट टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन टू। मुझे जिन जिन सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से मुझे यहां तक डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना है, तो मैं इसमें अब क्या करूंगा, आई विल गो ऑन टू द डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले हमें कहाँ मिलेगा, डेटा टैब के अंदर। वी हैव टू गो ऑन टू अवर डेटा टैब एंड वी वांट टू गो अवर डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, वैलिडेशन क्राइटेरिया, व्हाट्स माय वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन का क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं। I will go on to this, any value is a different option: whole number, any value, decimal, list, date, time, text, length। Okay, now I want to provide a list here। एक लिस्ट मुझे देना है यहाँ पर। लिस्ट मुझे किस चीज का देना है, लेट्स कम ऑन टू, ठीक है, ये मैंने अपने सोर्सेज यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कौन से सोर्सेज, जो मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेक all the sources or all the models, all the brand that are written here, I will just return in, write in my source: Chevy, Ford, Oldsmobile, okay, then comes our Chrysler, after Chrysler there's Dodge, okay। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, शेवी, फोर्ड, ओल्ड्समोबिल, क्रिसलर एंड डॉज, ये मेरे सोर्सेज हैं। इफ आई हिट ओके विद दीज सोर्सेज इनसाइड द सोर्सेज ऑप्शन, ओके, ठीक है, कोई चेंज तो हमें नजर नहीं आ रहा है, बट एज यू कैन सी ये जो सेल्स हैं इनमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है। सी दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड इन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे ये सारे सोर्सेज यहाँ पर लिस्टेड है। तो अगर मुझे कोई भी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग सर हम इन्हें मैनुअली भी तो एंटर कर सकते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। बट अब देखना, अब अगर मैं इस सेल के अंदर कोई नया ब्रांड ऐड करता हूं अपार्ट फ्रॉम दीज, मतलब इन ब्रांड्स के अलावा, लेट्स राइट टोयोटा, मैं टोयोटा एंटर करता हूं। इफ आई हिट एंटर, सी इट गेव मी एन एरर, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इसका मतलब है हमने इस सेल में जो रेस्ट्रिक्शन डाले थे, हमने जो रूल्स एक सेल के लिए प्रोवाइड किए थे, उस सेल में हमने जो भी वैल्यू एंटर किया है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सो वी कांट एंटर दैट वैल्यू इनसाइड दैट सेल। We can either retry, cancel or help. If I hit on retry, I have to simply write other name. If I enter any other name, let's write Maruti, the value doesn't match the data validation restrictions। हमने जो डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पर रूल ऐड किए थे, क्या रूल हमने ऐड किए थे डेटा वैलिडेशन के लिए, ये देखो कि सिर्फ इन सोर्सेज में से मुझे अपनी चीजें लिस्ट करना है। आई हैव टू राइट माई सोर्सेज और आई हैव टू फिल माई सेल्स फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आएगा यहाँ पर, एरर अलर्ट। आप देख रहे हो ना, तब से यहाँ पर ये एरर अलर्ट आ रहा है हमारे पास बार बार, अगर हम इसमें कुछ भी डिफरेंट लिखते हैं क्राइटेरिया के अलावा। तो मुझे ना ये वाला एरर नहीं देना, इट्स लाइक वेरी डिप्रेसिंग कि एकदम से आपको मना ही कर दिया एक्सेल ने कि नहीं आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। सो व्हाट इफ आई वांट टू चेंज दैट एरर, मुझे वो एरर चेंज करना है, तो आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट द सेल्स, आई अप्लाई डेटा वैलिडेशन टू। ठीक है, हमने 40 तक सिलेक्ट किए थे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन मुझे करना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर आते हैं। नाउ कैन यू सी दिस विंडो कॉल एरर अलर्ट, एरर अलर्ट पर जाते हैं। ठीक है, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। Now I can choose up to 3 type of error. One is stop, that means it completely stop you. One is a warning, that means आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बट ये आपको एक वार्निंग दे देगा। एंड वन इज इंफॉर्मेशन, मतलब वो सिंपली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। स्टॉप करते हैं, टाइटल इनवैलिड
इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, एरर में हमें क्या डालना है? एरर मैसेज में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, वी कैन ऐड एनीथिंग। लेट्स से द entered value doesn't match the data validation criteria. The entered value doesn't match the data validation criteria. Enter a valid value. ओके, ठीक है। अब अगर हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करते हैं, लेट्स से सुजुकी, द ठीक है, सबसे पहले तो हमारा टाइटल आ गया द एंटर इनवैलिड वैल्यू, फिर आ गया हमारा द एंटर्ड वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन क्राइटेरिया और डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया, एंटर वैलिड वैल्यू। ठीक है, मैंने जो एरर स्पेसिफाई किया था एग्जैक्टली वही चीज आई है। अब अगर हमें इस एरर का टाइप बदलना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक दिस एरर अ लिटिल लीनियंट, तो डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, स्टॉप एरर की बजाय हम कर देते हैं सिर्फ वार्निंग एरर। ओके, now if I write any other value here, okay, invalid value, the entered value doesn't match the data validation criteria, enter a valid value. Now it's giving me a warning कि आपने जो वैल्यू इसमें ऐड किया है वो डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज आस्किंग मी डू यू विश टू कंटिन्यू। I can yes, no or cancel. If I hit yes, it lets me go with the value. If I hit no, it will just simply give me a try again. ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन वाला एरर और देख लेते हैं, इंफॉर्मेटिव एरर। ठीक है, इसमें हम नया वैल्यू ऐड करते हैं, द एंटर्ड वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। इट्स जस्ट गिविंग मी एन इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं स्टिल इस वैल्यू के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं। तो वो मुझे बस क्या बता रहा है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट द एंटर्ड वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। ओके, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर डेटा वैलिडेशन लगाए लिस्ट के लिए, हम इन सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं हमारे नंबर्स के लिए। डेटा वैलिडेशन, ठीक है, सेटिंग्स हमारे क्या डालनी है हमें चेक कर लेते हैं। आ जाओ, मुझे यहां वाले सेल्स से लेके इतने सेल्स तक डालना है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। अब यहां मेरी वैल्यू कौन से टाइप का है? माई वैल्यू इज ऑफ अ डेसिमल टाइप एंड माई वैल्यू इज बिटवीन 2। ठीक है, अब जहां मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू है इस डेटा सेट के अंदर 1495 एंड माई मैक्सिमम वैल्यू इज 3995, तो मैंने एक पैरामीटर बता दिया कि मेरा जो वैल्यू अब एंटर होगा इन सेल्स में वो इन दोनों सेल्स के बिटवीन ही होगा, या तो ये दोनों वैल्यू होंगे या इन दोनों के बिटवीन होगा, इनसे कम या ज्यादा नहीं होगा। इफ आई हिट ओके, देखो कोई चेंजेस तो नहीं है यहाँ पर, बट अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं लेट्स से 25, ठीक है, ऐड हो गया, बट इफ आई ऐड 14, the value doesn't match the data validation restriction. Why? Because my value was between 1495. अगर मैं यहाँ पे 14.90 भी ऐड करता हूं तो भी वो नहीं रीड करेगा उसे। ठीक है, 39.95 रीड कर लेगा, बट इफ आई राइट 40.5 के लिए भी नहीं मानेगा वो। तो इस तरीके से हम भाई यूजर का डेटा इनपुट आप कह सकते हो कि हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अब जो भी डेटा आपके शीट के अंदर या फिर आपके एक्सेल डॉक्यूमेंट में ऐड होगा वो आपके बेसिस पर होगा, मतलब आप उस डेटा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से डेटा ऐड होगा, आपने जो सोर्सेज उसमें दिए हैं, द सोर्सेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, ओनली ऑन दैट बेसिस द वैल्यू एंटर्ड विल गो ऑन द सेल। आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे आपके डेटा वैलिडेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से ही ऐड होगा। ठीक है, अब एक डेटा वैलिडेशन का काफी अच्छा यूज देखते हैं, जिससे हम बेसिकली आप कह सकते हो कैसे डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है, कैसे डायनामिक बनाएंगे, एक फंक्शन होता है हमारा डी सम, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस सम। ठीक है, इसमें अब जैसे मेरा ये डेटाबेस है, मैं इस डेटाबेस का पूरा कैलकुलेशन करके एक क्राइटेरिया के बेसिस पे चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, डेटाबेस हमने सिलेक्ट कर दिया, लाउड सिलेक्ट माय फील्ड, फील्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, व्हाट्स माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए हमें अलग से इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्राइटेरिया या फिर जो हमारा कंडीशन है वो हमें अलग से इनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक है, एक आपको डेटा वैलिडेशन का एग्जांपल बताता हूं काफी अच्छा।
ठीक है, आई राइट माई सेल्स हेयर, डिविजन, ओके, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, साउथ। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अभी तो देखो यहाँ पे मेरे इतने सारे ये वैल्यूज लिखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में हम एक ऐसा एक डायनामिक, आप कह सकते हो कि हमारा डायनामिक एक फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी हम यहाँ फंक्शन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी, देन कम्स आवर डिवीजन। ठीक है, यहां हम लिखते हैं हमारा इज इक्वल्स टू डी सम। ठीक है, डी सम पर आते हैं, डी सम का ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस के लिए हमें चाहिए हमारा ये वाला सेल। ठीक है, कॉमा, नाउ व्हाट्स माय फील्ड, माय फील्ड इज टोटल सेल्स, मुझे डेटाबेस के अंदर किसका सम करना है, टोटल सेल्स का। आई विल हिट कॉमा एंड व्हाट्स माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया विल बी दिस। एंटर हिट किया, अभी तो ये पूरा आ रहा है। अब इस सेल के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन को ऐड करना है, तो आई विल जस्ट सिंपली ऐड डेटा वैलिडेशन लिस्ट। लिस्ट में ले लेता हूं, सोर्सेज में मुझे क्या देना है भाई, सोर्सेज है मेरे ये सारे, दीज आर माई सोर्सेज, आई कैन जस्ट सिंपली लिस्ट डाउन दीज सोर्सेज। ओके, अब ये आ गया देखो मेरा यहां पर। ठीक है, एक क्लिक पर मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने सारे सोर्सेज को यहां पर ऐड कर दिया। अब एक क्लिक पर मेरे अपने आप मुझे जिस भी कैटेगरी का यहां पर देखना है, वेदर इट्स रेंट, क्लैरिकल सपोर्ट, मैं वो देख सकता हूं। सेम इसी तरीके से यहां पर भी डेटा वैलिडेशन को ऐड कर देंगे हम। लिस्ट पर जाएंगे, लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ हम सिंपली लिस्ट कर देते हैं हमारे ये वाले सोर्सेस। ठीक है, एंटर हिट किया, यहाँ पर भी आ गए हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी सिंपली इनको क्या कर देना है, क्योंकि ये मेरे सोर्सेज हैं, वी विल सिंपली मेक देम हाइड, हाइड कर देते हैं इनको। ओके, ठीक है, यहाँ हम थोड़े एक हमारा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेल स्टाइल चूज कर लेते हैं, जैसे चेक सेल्स हमें ये वाले देने हैं, इन्हें हम कर लेते हैं बोल्ड, बोल्ड है हमारे ऑलरेडी, बोल्ड कर लिया। यहाँ जो हमारा फिल कलर है, फिल कलर दे देते हैं हमारा ब्लैक। ओके, डेटा का थोड़ा हम साइजेस इंप्रूव कर देते हैं, ये कर दिया हमने। ठीक है, कॉलम एडजस्ट कर देंगे, कॉलम एडजस्ट करने के बाद हमारे सेल से हमारा क्लियर ऑल कर देते हैं। सो एज यू कैन सी, हमने एक डायनामिक डीसम फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लिया, जहां मुझे एक क्लिक पर पता चल रहा है कि बेसिकली मैं क्या, मुझे अपने कौन से डिवीजन का, कौन से कैटेगरी का मुझे यहाँ पर अपना टोटल देखना है। इज इट सप्लाईज, ओके, ईस्ट डिवीजन सप्लाईज, ईस्ट डिवीजन टेलीमार्केटिंग, ईस्ट डिवीजन कॉन्ट्रैक्टर्स। Okay, now I want to change my division, I want to go on the south division, south division miscellaneous, south division rent। तो ये मेरा अलग अलग एक डायनामिक फंक्शन मैंने पूरा अपना बना लिया है बाय यूजिंग dsum and dcount फंक्शन। dsum and dcount फंक्शन को मैंने यूज किया, उन्हें यूज करने के बाद मैंने डेटा वैलिडेशन जब अप्लाई किया तो मैंने अपने dsum और dcount फंक्शन को क्या बना दिया, बिल्कुल ही डायनामिक, मतलब अपने हिसाब से मैंने एक अपना, आप कह सकते हो फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया है, मैनिपुलेट। यस सर, कैन यू रिपीट द डी सम फंक्शन, रिपीट डी सम फंक्शन। ओके फाइन, देखो डी सम फंक्शन, डी सम फंक्शन का हम नाम समझते हैं पहले। बेसिकली डी सम फंक्शन होता क्या है, डी का मतलब होता है डेटाबेस, डेटाबेस सम फंक्शन, यानी अगर हमें किसी भी डेटाबेस में एक कंडीशन या फिर एक क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें नंबर्स ऐड करना हो तो हम डी सम फंक्शन का यूज करते हैं। डी सम फंक्शन में हमें क्या तीन चीजें की नीड होता है, कौन से तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहला होता है डेटाबेस, वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज आवर डेटाबेस, हमारा डेटाबेस क्या है। तो ये पूरा, ये जो आप डेटा सेट यहां पर देख रहे हो, ये है मेरा पूरा डेटाबेस, this is my database. Now what is my field, I have to select field. Now pay attention here, field is either the label of the column in double quotation marks or number that represents the column's position in the list। या तो फील्ड आपका क्या होगा, एक कॉलम का लेबल, कॉलम का लेबल क्या होता है भाई, देखो जैसे ये मेरा एक कॉलम है पूरा, इसका लेबल क्या है डिवीजन, इसका लेबल क्या है कैटेगरी, इसका लेबल क्या है जैन, फेब, मार्च एंड टोटल सेल्स।
तो फील्ड के अंदर हमें वो लेबल सिलेक्ट करना होता है जिसका हमें एक्चुअल में सम करना है या जो हमें एक्चुअल में ऐड करना है। अब यहां मुझे क्या ऐड करना था, अपना टोटल सेल्स, तो मैंने टोटल सेल्स का, ओनली टोटल सेल्स वाला वो जो सेल है जहां लिखा हुआ है टोटल सेल्स, मतलब मेरा फील्ड, मैंने वो सिलेक्ट किया। सिर्फ टोटल सेल्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये पूरा क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर चुका हूं। तो अब डीसम फंक्शन क्या करेगा, उस डेटाबेस में वो देखेगा टोटल सेल्स वाला फील्ड कौन सा है, उस टोटल सेल्स वाले फील्ड को वो ऐड करेगा। अभी हमको देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, देखो कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर मुझे कौन सा कैटेगरी लेना है, तो मैंने वो यहां पर अलग से लिखा हुआ है, कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर्स, ये चूज कर लिया। दिस इज माय criteria. You have to total the sales, or you have to sum the total sales of the contractors category in my database. यानी आपको भाई पूरे डेटाबेस में इस टोटल का सम करना है, बट आपको कौन से कैटेगरी का करना है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स वाले कैटेगरी का। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको यहां पे बताता हूं, हमने कैटेगरी जैसा यहां पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली एज इट इज वैसा लिखना पड़ता है। इट डजेंट मैटर अगर वहां पे फॉर्मेट आपका दूसरा है ना, दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दूसरे सेल में लिखा हुआ है, बस जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग एज इट इज होना चाहिए। अगर आपका जो कैटेगरी स्पेलिंग है वो कैटेगरीज है तो वो मुझे जीरो दे देगा। व्हाई? बिकॉज कैटेगरीज जैसा जो वैल्यू है मेरे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इट डजेंट एग्जिस्ट इन माई डेटाबेस। तो इसीलिए यहां पे हमारा आया है कैटेगरी। ठीक है, जो स्पेलिंग लिखा है वही एज इट इज लिखना होता है। डजेंट मैटर अगर आप उसे लोअर केस में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ आर देयर एनी डाउट्स इन द dsum फंक्शन? Sir, will the recorded video be provided with us? Yes, the recorded video will be provided to you, Iti Agrawal. Rana Rajput, why we use database sum? How to calculate the date? Okay. Yes, Akshay, you will get the certificate also. ठीक है, डाउट्स क्लियर करते हैं। Why we use database sum? Rana Rajput has asked why we use the database sum. Now, let's say Rana, आपके पास एक डेटाबेस है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके पास एक डेटाबेस है, लेट्स सपोज यू आर अ एरिया मैनेजर, आप किसी एक जगह के मैनेजर हो। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट आपकी टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोगों का आपके पास एक पूरा डेटा सेट होगा, सबके बारे में आपके पास एक पूरा डेटा होगा, सबने कितना काम किया है, कौन कैसे काम कर रहा है। जैसे मेरे पास ये वाला डेटा है कि भाई कौन से डिवीजन के अंदर कौन सी कैटेगरी में मेरा मंथ वाइज कितना सेल हुआ है और उसका टोटल सेल्स कितना है। अब मान लो मुझे ना इस डेटाबेस के अंदर से सिर्फ ईस्ट डिवीजन में या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के अंदर मुझे देखना था कि मेरा एडवर्टाइजिंग कितना निकला है। तो अब आपको यहां क्या करना पड़ेगा, पहले ईस्ट पर आप जाओगे, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग कहाँ है। ओके, एडवर्टाइजिंग यहाँ है, अब इसका टोटल कहां पर है, टोटल यहां पर है। तो एक कंडीशन के बेसिस पे आपने सिंपली क्या किया भाई, ईस्ट डिवीजन और एडवर्टाइजिंग का यहां आपने टोटल अपने आप शो कर दिया। तो एक डेटाबेस में से जब हमें एक पर्टिकुलर डेटा सेट या फिर एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए होता है कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में से या फिर इस बड़े वाले डेटाबेस में से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ कॉपिंग इसका टोटल चाहिए, तो हम क्या कर देंगे भाई, यहां पर हम कर देंगे हमारा कॉपिंग। वेयर इज कॉपिंग? ये रहा हमारा कॉपिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ डेटा वैलिडेशन यूज नहीं करते तो मुझे पता है क्या करना पड़ता, इसके नीचे सबको लिस्ट करना पड़ता, टेलीफोन, ठीक है, ओवरहेड। क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन का यूज किया है इसलिए हमने एक सेल के अंदर ही हमारा सारा डेटा यहां पर इंक्लूड कर लिया। तो इस तरीके से हम एक डेटा वैलिडेशन को यूज करके हमारे कई सारे फंक्शंस को हम डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप चीजें सही फॉलो करें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से यहां पर अप्लाई कर रहे हैं सेम तरीके से दूसरी जगह भी अप्लाई हो सकता है कुछ चेंजेस हमें करने पड़े, हो सकता है कुछ दूसरी हमें चीजें करनी पड़े। ओके, नाउ फॉर द फाइनल वी विल सी आवर पिवट टेबल। ठीक है,
हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, पिवट टेबल. बेसिकली हाउ वी कैन make a pivot table. You, as you can see, this large data set is here. अब पिवट टेबल और पिवट चार्ट ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन रहेगा कि सर हम इसमें नॉर्मल चार्ट या फिर नॉर्मल टेबल का क्यों यूज नहीं कर सकते. ठीक है, अभी ये जो डेटा सेट आपके सामने है ये अभी एक नॉर्मल टेबल ही है. तो क्या आप इस टेबल से कुछ भी क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या क्या है इस टेबल के अंदर, क्या हो रहा है. नहीं, हमें बस इतना पता है ये ईयर का कॉलम है, ये मंथ है, ये टाइप हमारे प्रोडक्ट है, ये अलग अलग सेल्स पर्सन है, ये रीजन है, ये सेल्स यूनिट और ऑर्डर. बस इतना ही पता चल रहा है. अभी अगर मैं इस डेटा पे अपना एक चार्ट इंसर्ट करता हूं, लेट्स गो ऑन टू इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट्स. भाई ये रेकमेंडेड चार्ट्स आ गए हमारे. अब ये वाला चार्ट देखना, कुछ समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर आपको? कैन यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? नहीं आ रहा. वाई? बिकॉज सी दिस लार्ज डेटा सेट्स, ये जो लार्ज डेटा सेट होते हैं ये हमारे नॉर्मल चार्ट्स और नॉर्मल टेबल के अंदर हम एनालाइज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट्स हैं एंड हमारे नॉर्मल टेबल एंड नॉर्मल चार्ट्स इस तरीके से डिजाइन नहीं किए गए कि वो इतने लार्ज डेटा सेट को एक साथ विजुअलाइज कर सके. The reason for these limitations is that why we use pivot table and pivot chart. सिर्फ इसी लिमिटेशन की वजह से हम pivot charts और pivot table का यूज करते हैं. ठीक है, pivot chart को हम कैसे करेंगे? हमें सिंपली बस अपने टेबल पर क्लिक करना है. डजेंट मैटर एनीवेयर, हम कहीं पर भी हमारे टेबल पर क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करने के बाद हमें जाना है सिंपली टेबल डिजाइन पर. ठीक है, ये जो मेरा टेबल है इसके डिजाइन पर जाना है और फिर मुझे जाना है समराइज विद पिवट टेबल. अगर आपको टेबल डिजाइन का फीचर नहीं मिलता, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक एनीवेयर ऑन योर टेबल, गो ऑन टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन पिवट टेबल. ठीक है, पिवट टेबल आ गया, ये मेरा नया रेंज है. ओके, ईयरली सेल्स, न्यू वर्कशीट. ओके, तो एक कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है पिवट टेबल का. दीज आर अवर पिवट टेबल फील्ड्स. ये हमारे कुछ पिवट टेबल के फील्ड्स होते हैं. ये हमारे सारे अलग अलग कॉलम आ गए, ईयर, मंथ, टाइप, सेल्स पर्सन, रीजन, यूनिट्स, ऑर्डर नंबर. ये हमारे होते हैं एरियाज. दिस इज अ कॉलम एरिया in which I have to represent anything in my column of a pivot table. I can put here. यहाँ से मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ, यहाँ से मैं रोज में जो मुझे ऐड करना है वो ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे मेरे सिर्फ वैल्यूज ऐड होंगे. लेट्स सपोज भाई मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे लेट्स से सेल्स पर्सन ऐड करने हैं. ये मेरे 5 सेल्स पर्सन आ गए, 5 सेल्स पर्सन थे. अब यहाँ पर देखो आप, आपका ये जो पिवट टेबल है इसमें भी हमारे 5 ही सेल्स पर्सन है. लेकिन कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि भाई सबने बार बार सेल किया हुआ है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा. यहाँ पर देखो 5 सेल्स पर्सन सिर्फ हमारे लिस्ट हुए हैं. अब इन्होंने भाई सेल कितना किया है? क्योंकि सेल हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम उसे वैल्यूज में पुट करेंगे. तो देखो भाई सम ऑफ सेल्स आ गया मेरे सामने, पांचों के पांचों सेल्स पर्सन का. तो अब ये जो मेरा पूरा डेटा सेट है ना, ये वाला, ये मेरे इस छोटे से टेबल में अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है. एज यू कैन सी पांचों सेल्स पर्सन का सम ऑफ सेल्स आ गया. भाई अगर मुझे एवरेज सेल्स निकालना है तो आई कैन जस्ट सिंपली गो ऑन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट. यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स. मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ एवरेज, सम, काउंट, मिन, मैक्स. क्या करना है? एवरेज निकालना है. तो ये आ गया भाई मेरा एवरेज ऑफ सेल्स. लेट्स से मुझे सेल्स पर्सन वाइज नहीं निकालना, मुझे रीजन वाइज निकालना है. तो भाई ये लो रीजन वाइज निकाल लेते हैं. रीजन को यहाँ डाल देते हैं, ये आ गया हमारा. ठीक है, बिशप ने वेस्ट में सेल किया है, ली ने सेंट्रल में, पार्कर ने नॉर्थ में, पोलेन ने साउथ में एंड वॉटसन ने सेंट्रल के अंदर. ठीक है, सेल्स पर्सन हम सिंपली, हमें क्या करना है यहाँ पे? बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ठीक है, जैसे ईयर में ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पर दे दिया. तो 2013 में सेंट्रल में इतना सेल हुआ था, नॉर्थ में इतना सेल हुआ था, साउथ में इतना हुआ था, वेस्ट में इतना, ग्रैंड टोटल ये आ गया. ठीक है, एवरेज की बजाय यहाँ कर लेते हैं हमारा वैल्यू फ्री सेटिंग से सम ऑफ सेल्स. ठीक है, ये सम ऑफ सेल्स हमने बना लिए. ओके, अभी हम और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? टाइप ऐड कर सकते हैं, ईयर रिमूव कर देते हैं. ठीक है, कॉलम्स भी रिमूव कर देते हैं. टाइप, कौन से प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट, और कौन से सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे सेल किए.
तो भाई देखो, बिशप ने ये 4 प्रोडक्ट सेल किए हैं और इतना इतना सेल किया है, ये रहा बिशप का टोटल। ये ली ने सेल किए हैं चारों प्रोडक्ट, ये रहा उसका टोटल। अब मुझे यहाँ पे अगर ईयर भी ऐड करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली ऐड ईयर इन द कॉलम। 2013 में ये देखो, अब आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल के अंदर कौन सा डेटा हाईलाइट हो रहा है मेरा? पूरा इस टेबल के अंदर मेरा ये वाला डेटा पूरा हाईलाइट हो रहा है, जहां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था नॉर्मल टेबल में। पिवट टेबल से मैंने क्या किया, पिवट टेबल से उस डेटा को मैंने इजीली अंडरस्टैंडेबल बना दिया। अब इस टेबल का हम चार्ट भी बना सकते हैं। वी विल जस्ट सिंपली गो ऑन टू दिस पिवट टेबल एनालाइज बटन। हम जैसे एक पिवट टेबल बनाते हैं, पिवट टेबल एनालाइज का आपके सामने एक ये बटन आ जाता है। पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, वी विल क्लिक ऑन पिवट चार्ट एंड सी, ये आ गया हमारा पिवट चार्ट। हम अलग अलग चार्ट्स यहां पर बना सकते हैं, पाए, बार चार्ट। लेट्स सिलेक्ट अ कॉलम चार्ट। ठीक है, अब इस कॉलम चार्ट में देखो, ये हमारे कुछ अलग अलग तरीके से आ रहा है। ईयर को रिमूव करके लेजेंड से हम डाल देते हैं फिल्टर्स में, और टाइप हम डाल देते हैं यहां पर। तो भाई ये देखो, ये मेरा चार्ट बन गया पूरा। यहां पर दिख रहा है कि फ्रोजन योगर्ट, आइसक्रीम, पॉप्सिकल, टेस्टी ट्रीट्स किस किस ने कितना कितना सेल किया है। और ये एक फिल्टर में जो मैंने ईयर ऊपर, तो देखो एक फिल्टर का बटन आ गया। फिल्टर का बटन जब आ जाता है मेरे पास, फिल्टर के बटन से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं ओके मुझे कौन कौन से आइटम सिलेक्ट करने हैं। लेट्स से 2013 का डेटा देखना है मुझे ओनली, तो आई विल जस्ट सिंपली डीसिलेक्ट 2014 एंड 15 एंड आई विल सिलेक्ट 2013। ओके, तो ये 2013 का डेटा आ गया। 2014 का देखना है तो 2014 का आ जाएगा, 2013 का रिमूव कर दो। ओके, ठीक है, यही चीज मैं यहां से भी कर सकता हूं चार्ट में से अपने। अगर तीनों का देखना है तो हम तीनों का भी लगा सकते हैं। तो अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं जिसमें हमारे होते हैं स्लाइसर। पिवट टेबल में स्लाइसर्स, स्लाइसर्स आर रियली हेल्पफुल टूल। हम स्लाइसर से एक्सटर्नल फिल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर किया, इंसर्ट स्लाइसरों में मैंने टाइप का ऐड कर लेते हैं। चलो ओके दबाया, टाइप का स्लाइसर्स हमारे पास ऐड हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा पिवट टेबल में चेंजेस करते हैं। पिवट टेबल में कैसे चेंजेस करते हैं? ईयर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, टाइप रिमूव कर देते हैं। टाइप रिमूव करने के बाद भाई हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे ईयर्स। तो अभी देखो, फ्रोजन योगर्ट का सेल, आइसक्रीम का सेल, पॉप्सिकल का सेल, टेस्टी ट्रीट्स का सेल, ये मेरे एक क्लिक पर मेरा डेटा क्या हो रहा है? मेरा डेटा पूरा हो रहा है चेंज। तो पावर पिवट, सॉरी, पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल आर रियली पावरफुल एंड हेल्पफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल इनसाइड एक्सेल। मतलब हमारे काफी पावरफुल और बहुत ही हेल्पफुल टूल्स हैं, जिससे हम हमारा बहुत लार्ज डेटा सेट को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देख ही रहे हो, हमने हमारे लार्ज डेटा सेट को अलग अलग फिल्टर्स लगा के हमने विजुअलाइज कर दिया। ये देखो अभी अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप ये चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो फिल्टर के हिसाब से मेरा पिवट टेबल भी अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब किसी के डाउट है पिवट टेबल को लेके? आई वांट टू लर्न एक्सेल विद एआई, हाउ टू ओपन पिवट टेबल फील्ड। ओके, नाइस क्वेश्चन अनुराग। हाउ कैन वी ओपन पिवट टेबल फील्ड? ठीक है, अगर आपका पिवट टेबल फील्ड, जैसे अभी मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो मेरा पिवट टेबल फील्ड आ जाता है। व्हाट इफ अगर ये हमारा यहाँ पर विजिबल नहीं है, मैंने इसे क्लोज कर दिया, अब देखो मेरा इस पर क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? आई विल जस्ट सिंपली गो ऑन टू माय पिवट टेबल एनालाइज। यहां बिल्कुल फार राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है फील्ड लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना, तो आपका फील्ड लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इन्हीं स्लाइसर्स की मदद से, इन्हीं पिवट टेबल के मदद से और इन्हीं पिवट चार्ट्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम एक कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट एंड आई विल शो यू अ डैशबोर्ड। ठीक है, हम इस तरीके का एक कोई आपका डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। सी दिस वन। ठीक है, अब ये जो डैशबोर्ड है, दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स दैट आई क्रिएटेड। ओके, एंड जो डैशबोर्ड का डेटा सेट है वो ये है भाई। इसमें अप्रोक्स 5781 रोज हैं आपके, एंड इन 5781 रोज में आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं। तो इतने लार्ज डेटा सेट को हमने सिंपली क्या किया? हमने हमारे इस डैशबोर्ड में समराइज कर दिया।
कि मेरे जितना भी इस डेटा, ये जो मेरा डेटा है, जो कुछ भी मुझे हाईलाइट कर रहा है, ये मेरे इस डैशबोर्ड के अंदर हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इस डेटा सेट से मैंने क्या किया है, इस डेटा सेट से भाई मैंने सिंपली अलग अलग टाइप के मैंने पिवट चार्ट्स बनाए। ये पिवट चार्ट है मेरा, ये पिवट मैप है। ठीक है, सेल्स का मैप बना दिया मैंने, ये मेरा पिवट टेबल है, ये मेरा पिवट चार्ट है, अलग एक मैप। ये डिलीवरी परफॉर्मेंस की केपीआईज है, दिस इज अ रिटर्न रेट, कस्टमर एक्विजिशन। फिर मैंने सिंपली क्या किया, ये जो सारे मेरे जितने पिवट चार्ट्स थे, मैंने इनको एक साथ लिंक किया। एक साथ लिंक करने के बाद मैंने सबको एक अच्छे तरीके से, अच्छा मैंने फिल्टर या इनको फॉर्मेट करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, अब इन्हें पुट करने के बाद ये मेरे अलग अलग स्लाइसर आ गए। तो अभी देखना, मैंने सारे स्लाइसर्स को भी मेरे पिवट टेबल से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मुझे देखना है, ओके आई वांट टू सी माय 2017 डेटा, तो मेरा पूरा पिवट चार्ट चेंज हो जाता है। दिस इज माय 2017 डेटा, हियर आर माय सेल्स, this is my showing where I am sending my product, this is showing my on time deliveries and return। यहाँ से मेरे कस्टमर एक्विजिशन शो होते हैं कि भाई ऐड के थ्रू कितने आए, ऑर्गेनिक कितने आए मेरे पास, रिटर्निंग कितने कस्टमर्स थे, टोटल कस्टमर्स कितने थे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 5 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 3 का देखना है, ये क्लिक किया, मेरा डेटा पूरा चेंज हो गया। ठीक है, मुझे देखना है कि भाई मेरे एलाबामा स्टेट में कितना जा रहा है, तो ये देखो, ये सिर्फ एलाबामा सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, उसका सेल्स चार्ट आ गया पूरा। मिसिसिपी में कितना जा रहा है, तो दिस इज फ्रॉम मिसिसिपी। सो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम जो भी चीज एक्सेल के अंदर सीखते हैं हमारे पिवट टेबल एंड पिवट स्लाइसर्स टूल के बाद, हम उनसे एक हमारा इस प्रॉपर तरीके का एक एक्सेल डैशबोर्ड हम तैयार कर सकते हैं। दिस इज माय कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड। इसी तरीके के हमारे कुछ और भी एक्सेल डैशबोर्ड्स हैं। ठीक है, एक्सेल डैशबोर्ड्स आपके और कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, प्रोजेक्ट्स। अब जैसे ये एक परफॉर्मेंस मैकडोनल्ड्स का सेल्स डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया था। सी दिस इज अ प्रोफेशनल सेल्स डैशबोर्ड ऑफ मैकडोनल्ड्स। ठीक है, जिसमें बता रहा है कि पर हमारा 2022 में साउथ अमेरिका के अंदर कहां पर सेल हुआ। ओके, ब्राजील में हमारे को जिस तरीके से हुए, इतने परसेंट के हमारे कस्टमर्स हैं, प्रॉफिट कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा, दिस इज माय सेल्स ट्रेंड एंड दिस इज माय कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ठीक है, ये हमारा कस्टमर सैटिस्फैक्शन है, जहां अवेलेबिलिटी 95% है, हाइजीन 93 है, क्वालिटी ये है, एंड दिस इज माय केपीआईज। ठीक है, मैंने यहां पर कुछ एक अलग बटन स्पेसिफाई किए हैं, ये मेरा केपीआई है। यहां से मेरे सारे केपीआईज दिखते हैं, एक्चुअल, प्रॉफिट, कस्टमर अमाउंट, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। यहाँ से भाई आपको अगर किसी से भी कांटेक्ट करना है, ओके, ये आ गया मेरा डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड और क्रिएटेड था हमारा, विच वन, एक डैशबोर्ड और है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अब जो मैंने इससे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाया था वो कस्टमर सक्सेस बता रहा था, बट दिस इज अ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इट इज शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ माई कंपनी। एक अरोमा एंटरप्राइजेस करके कंपनी है। ठीक है, फेक डेटा सेट से ये क्रिएट किया गया था। हमें इसमें क्या करना है भाई, हमें इसमें दिखाना है भाई 2018 का मेरा डेटा, तो उस हिसाब से डेटा चेंज हो गया। 2019 का डेटा, ठीक है, एरिजोना में कितना है, कैलिफोर्निया में कितना है, न्यू मैक्सिको में कितना है, तो इसी हिसाब से मेरा डेटा पूरा चेंज हो रहा है। आइटम 1, आइटम 2। तो देखो, इस तरीके से हमारे बनते हैं डैशबोर्ड। दीज आर अवर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, जहां वन क्लिक पे आपको पता चल सकता है कि बेसिकली आपने क्या किया है या आपके कंपनी में चीजें कैसे हो रही हैं। और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद पिवट चार्ट्स एंड स्लाइसर ओनली। इसमें अभी हमने ज्यादा कोई अलग से फंक्शन नहीं लगाए हैं, हमने सिंपली पिवट चार्ट्स एंड टेबल्स का ही यूज किया है। बट पिवट चार्ट्स एंड टेबल्स में भी हमें अलग अलग ऑप्शन से कुछ चीजों से डील करना पड़ता है। So, guys, these were the topics. These were some advanced and beginners topic that we need to know in order to work inside Excel. How to create pivot tables and charts. You can create Joita Bose. Okay, you can create pivot table and charts by simply going on a data set, simply selecting a data set, go on to the insert tab, select pivot table। जैसे ही आप पिवट टेबल सिलेक्ट करते हो, आपका ये आ जाता है सिलेक्ट टेबल और रेंज ईयरली सेल्स। ईयरली सेल्स मेरे टेबल का नाम है। ठीक है, इफ आई हिट ओके, एक नया पिवट टेबल शीट आ जाता है मेरे सामने। मुझे सिंपली क्या करना है, हाईलाइट करना है कि मुझे क्या शो करना है अपने पिवट टेबल से। ठीक है, अब जैसे मैंने ये शो कर लिया, अब मुझे इसका चार्ट बनाना है। तो आई विल जस्ट सिंपली गो ऑन टू दिस पिवट टेबल एनालाइज बटन। जैसे ही आप पिवट टेबल क्रिएट करते हो, एक पिवट टेबल एनालाइज का बटन आ जाता है।
आपको क्या करना है उस बटन पर जाकर, आपको करना है पिवट चार्ट, एंड यू कैन जस्ट सिंपली ऐड अ पिवट चार्ट. Okay, so these were the topics: how to put a link in a table cell, how to put a link. You can just simply copy a link, or you can simply uh, let's say add a hyperlink. How to insert slicer. Okay, slicers कैसे add करते हैं. पिवट टेबल एनालाइज में आप जाते हैं, जब पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, तो यहाँ आपके इंसर्ट स्लाइसर्स के बटन है. इंसर्ट स्लाइसर, एक इंसर्ट टाइमलाइन का भी है. इंसर्ट टाइमलाइन में हम बेसिकली डेट्स यूज करते हैं. हमारे जो अलग अलग डेट्स होते हैं हम इंसर्ट टाइमलाइन में उसे यूज कर सकते हैं. इंसर्ट स्लाइसर्स, स्लाइसर में हमें सिंपली चूज करना है हमें किस चीज का स्लाइसर ऐड करना है. ओके, वी कैन इंसर्ट स्लाइसर फ्रॉम दिस इंसर्ट स्लाइसर बटन ऑल्सो. ये स्लाइसर है जो यहाँ पर, इससे भी कर सकते हैं. ओके, okay sir, how we can export from excel to access, from शिवांगी सिंह. ओके, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है शिवांगी. गो ऑन टू द गेट डेटा, और वी कैन जस्ट सिंपली गो ऑन दिस रिसेंट सोर्सेज फ्रॉम टेबल रेंज. आप गेट डेटा कर सकते हो, तो आप उसे हमें एक्सपोर्ट भी करना है. ठीक है, अब गेट डेटा में फ्रॉम फाइल डेटा सोर्सेज, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर. वो चीजें हम पावर क्वेरी एडिटर से करते हैं फ्रॉम सोर्सेज, और अगर हमें कोई डेटा हमारा एक्सपोर्ट करना है. अभी करंटली हमारे पास कोई क्वेरीज नहीं है. हमें डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए क्वेरीज का नीड होता है. इफ यू आर वर्किंग विथ एक्सेस डेटाबेसेस, you know what a query is. For that query we have to use the power query function, that is from a really advanced part of excel. तो power query function के थ्रू हम हमारा जो डेटा होता है उसे हम एक्सट्रैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बट उससे पहले क्या होना चाहिए, हमारा जो टेबल है वो क्रिएटेड होना चाहिए. अभी जैसे करंटली मैं इस डेटा को अभी फिलहाल कहीं पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, है ना. उसके लिए मुझे पावर क्वेरी से इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. पावर क्वेरी से ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं डेटा को अपना एक्सपोर्ट कर सकता हूं, जब मैं एक क्वेरी से अपना डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं. एक्सप्लेन द पिवट टेबल, हाउ टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड कैलकुलेट अननोन वैल्यू. How to obtain a straight line equation? See, that is totally dependent on the database. अगर आपके पास ऐसा डेटाबेस आता है, अब ऐसे स्पेसिफिकली तो आप चीज़ें फाइंड आउट नहीं होती इसमें. ठीक है, ओके, प्लीज वंस अगेन एक्सप्लेन द पिवट टेबल. पिवट टेबल आपका क्या होता है. पिवट टेबल एक पावरफुल एनालाइजेशन टूल होता है, जिससे आप सिंपली क्या कर सकते हो, पिवट टेबल से लार्ज डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, लार्ज डेटा सेट हमारे एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू. चार्ट्स बना सकते हैं, और ये सारी चीजें हम इनसे कर सकते हैं. ओके, सी आई थिंक नाउ इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू एंड अ सेशन. ठीक है, आपको जो भी सर्टिफिकेट के लिए रहेगा, थोड़ी देर बाद एक आपका क्विज अपलोड होगा पोर्टल के ऊपर. उस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है. आफ्टर अटेम्प्टिंग दैट क्विज, क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट का अपने आप प्रोवाइड हो जाएगा. एंड आवर एडवांस एक्सेल कोर्स इज बेसिकली हैव एन ऑफर टुडे. ओके, एक ऑफर है बेसिकली. जो हमारा कोर्स है, इट्स प्राइस फॉर 5,000, सॉरी नॉट 5,000, इट्स आज के लिए जो हमारा ऑफर है बेसिकली उस प्राइस पर आज, सिर्फ आज के दिन आप परचेज कर सकते हैं हमारा एडवांस एक्सेल कोर्स फॉर 5,000 रुपीज. ओके, नॉर्मली जो इसका प्राइस है वो इससे हायर है ना. आप हमारे पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. फॉर सर्टिफिकेट, अगर आपको आज ही रजिस्टर करना है कोर्स के लिए, तो एक ग्रुप लिंक आपके लिए शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप का. आप उस पर से जिसको आज इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है वो उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं. थर्डली, टू गेट द सर्टिफिकेट, आपको एक्सेल का जो क्विज रहेगा अभी थोड़ी देर बाद, उसे अटेम्प्ट करना होगा. ओके, एंड फॉर टुडे ओनली यू हैव this option, or you have this offer where you can purchase this course for 5,000 rupees. Okay, so now I'm going to, yeah, now I'm going to hand over the meeting to Pankaj sir. Now Pankaj sir will explain everything. Okay, thank you so much guys, it was really a nice session. Your doubts were really good. ठीक है,
वेयर आई कैन ज्वाइन द क्विज। क्विज आपको अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल के ऊपर ही। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, इट वाज रियली थैंक यू सो मच चंद्रांशु सर, थैंक यू सो मच गाइडिंग पंकज। अस टुडे। मैं यहाँ से आगे स्टूडेंट्स को गाइड कर दूंगा रिगार्डिंग क्विज एंड रिगार्डिंग आवर पेड कोर्सेज। Yes, yes, yes. Okay, thank you so much, Pankaj. Okay, everyone, thank you so much. Goodbye and good night. Hi students, am I audible? Am I audible to everyone? Yes, okay. So okay, hi students, am I audible now? Hello. Yes. Sorry. ओके, सो मैं क्विज की लिंक फिर से पेस्ट करता हूँ। जिस जिस भी स्टूडेंट्स ने क्विज अटेंड नहीं की है वो वहाँ से कर देना, बिकॉज अगर आप क्विज नहीं देते हो तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। यस, आई सेंडेड द लिंक। कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जिन्होंने क्विज अटेंड कर दिए हैं एंड सर्टिफिकेट भी मिल गया है? ओके, सो मैं थोड़ा सा जो हमारे कोर्सेस हैं एक्सेल का है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ओके, गिव मी 1 मिनट। सर क्विज ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हर स्टूडेंट ने वहीं से क्विज दिया है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। राइट, मेरी विंडो दिख रही है सभी को? यस, क्या अभी दिख रही है? दिख रही है ना? राइट, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 430 स्टूडेंट ने क्विज दे रखी है ऑलरेडी। सो क्विज ओपन ना होने का कोई भी इशू नहीं है। मैं देखो यहीं से फिर से लिंक भेज रहा हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ से आप
कर सकते हो। ओके, दिस इज द लिंक। ओके, ओके। सो मुझे एक बार बताइए कि क्या ये पीडीएफ सभी को विजिबल है? क्या ये आप देख पा रहे हो? नो, नो, नो। ओके, ओके, गिव मी 1 मिनट। मैं पूरी विंडो शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हेलो। क्या अभी ये स्क्रीन सभी को दिख रही है? एडवांस एक्सेल विथ एआई विजिबल, राइट? ओके। सो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे कि सर, ये सर्टिफ़िकेट से जॉब मिल जाएगा क्या? ये सर्टिफ़िकेट लेके? ऑब्वियसली नॉट। एक सर्टिफ़िकेट से जॉब नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, सभी को पता है। आपके पास एक्चुअली स्किल्स तो होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट सर्टिफ़िकेट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास उसकी कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सर्टिफ़िकेट कहाँ से डाउनलोड करूँ? सर्टिफ़िकेट नहीं आ रहा है। अरे देखो, मैं सर्टिफ़िकेट का थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ, ओके? राइट? मैंने ऑलरेडी क्विज़ की लिंक दे दी है। फर्स्ट अपॉन, फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ध्यान से सुनना सबसे पहले, देन क्विज़ ओपन कर रहा हूँ, ओके? ये क्विज़ की लिंक है, ठीक है? यहाँ से आप क्विज़ दे सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा है, देन यू गाइज़ कैन गो ऑन आवर वेबसाइट www.skillactor.com। वहाँ से भी आप वेबिनार सेक्शन में, सॉरी, कॉलेज ज़ोन सेक्शन में जाके क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जिस ग्रुप में आप लोग हो, मैं सभी ग्रुप में क्विज़ की लिंक भेज देने वाला हूँ, वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हो। वहाँ से भी आप क्विज़ दे सकते हो। और रही बात सर्टिफ़िकेट की, ठीक है? तो सर्टिफ़िकेट का क्या क्या है, क्विज़ सबमिट करने के बाद ही आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप सिंपली वेट करना कुछ देर के लिए, क्योंकि मेल पे ऑटोमैटिकली सर्टिफ़िकेट आ जाता है, ठीक है? ओके, सो क्विज़ नॉट ओपन, सब लोग वहीं से ओपन कर रहे हैं। मैं क्विज़ ऑन करके दिखाता हूँ, ओके? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्विज़, 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 ये जो मैंने लिंक पेस्ट करी है, वहीं से ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्विज़ मैंने ओपन की, ठीक है? चैट में से। मैं आ गया क्विज़ में, देख पा रहे हो? ये स्टार्ट बटन है। यहाँ से स्टार्ट पे जाओगे तो आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा डैशबोर्ड पेज है, दैट्स व्हाई मैं होम पे आ जा रहा हूँ, बट आप सभी का स्टार्ट पे से क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा, ओके? बट ऑन क्लिक सर्टिफिकेशन प्रॉम्प्ट शोइंग नॉट कंप्लीट कोर्स। आपने सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे होंगे अंश, दैट्स व्हाई, राइट? फिर भी कोई इश्यू नहीं है अंश, डोंट वरी, आपको मेल थ्रू सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर्टिफिकेट इज सिस्टम जनरेटेड, ओके? क्विज कंप्लीट, बट सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करूँ? नो इश्यूज, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मेल थ्रू आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो कल तक आप वेट कर लेना, एंड देन मुझे मैसेज कर सकते हो, एडमिन्स को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हर कोई आपको रिप्लाई करेगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, नो इश्यूज, ओके? ओके, थैंक यू। तो अभी ये थोड़ी सी चीज़ें साइड में रखते हैं, ओके? ये सारी चीज़ें मैं सॉर्ट कर दूंगा, नो इश्यूज। थोड़ा सा अपनी स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ओके। सो मैं कुछ बताना चाहता था कि कोर्स के बारे में। गेट कोर्स फॉर फ्री, राइट? वहीं से आप कर लेना, ओके? सो ये एडवांस एक्सेल विथ एआई वाला हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पे आप एक्सेल में एकदम एक्सपर्ट बन सकते हो सिर्फ 25 डेज में, ठीक है? यही हमारा ये प्रोग्राम है।
तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देख लेना। If you enjoyed today's session, you will love our Advanced Excel with AI course. This is 25 days intensive program. Okay, designed to help you master Excel at AI powered tools. What is Advanced Excel? ये सारी चीज़ें आपको पता है। Why Advanced Excel? Endless career opportunities है इसमें। ओके, सो एडवांस एक्सेल विथ एआई प्रोग्राम में हम क्या-क्या प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट्स से। 25 डेज़ का इंटेंसिव प्रोग्राम रहेगा ये। उसमें 500 प्लस कांसेप्ट्स कवर करी जाएगी, 10 प्लस रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी दिए जाएँगे, वन टू वन डाउट क्लियरिंग भी रहेगी, क्योंकि हमारे जो सेशन होते हैं ना, वो वन टू वन डाउट क्लियरिंग के ही होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन सेशन। देन लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सारी कवर की जाएगी इसमें, क्योंकि अभी जो एआई इसमें ऐड हुआ है, वो भी सारी चीज़ें कवर करी जाएगी। देन कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन किया जाएगा। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, एंड जॉब रोल्स दैट विल ओपन अप आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है? उसके बाद ये लर्निंग जर्नी रहेगा आपका। सैंपल प्रोजेक्ट्स देख लेना आप, सैंपल प्रोजेक्ट्स क्या-क्या रहता है। इंटरैक्टिव सेल्स डैशबोर्ड बनाना, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग हाइपरलिंक्स बनाना, केपीआई डैशबोर्ड इन एक्सेल यूज़ करना, डायनामिक डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल लाइक अस, ये बताना, देन प्रोजेक्ट स्टेटस डैशबोर्ड। ये सारी चीज़ें बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हो गए, ठीक है? तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, पास्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके एक्सपीरियंस शेयर करे, एंड देन देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, ओके? और सर्टिफिकेट ये जो आप देख पा रहे हो, वेरिफाइड सर्टिफिकेट, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज़ वेरिफाइड सर्टिफिकेट? कोई बता सकता है? हाय, वेरिफाइड सर्टिफिकेट का मतलब कोई बता सकता है मुझे? व्हिच कैन बी एडेड टू रिज्यूमे। यस, ये भी हो गया, बट ये वेरीफाई कैसे होता है कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है? अब मान लो अभी मैं कंपनी से एक कोर्स खरीद रहा हूँ, एंड देन वो मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, ओके? और वो सर्टिफिकेट मैं सेम टू सेम कैनवा यूज़ करके, कोरल ड्रॉ यूज़ करके, कुछ भी करके सेम टू सेम एडिट कर दे रहा हूँ, एंड मेरे फ्रेंड को भी दे दे रहा हूँ, उसका नाम चिपका के। तो आप मुझे बताना, उस दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इसमें से सर्टिफाइड कौन-सा रहेगा? वेरिफाइड कौन-सा रहेगा सर्टिफिकेट? हॉलमार्क, बीआईएस हॉलमार्क, ओके। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, लिंक विथ हॉलमार्क, वैलिड अलाउड, ओके सर, हम डाउनलोड द सर्टिफिकेट, ओके, नाइस। देखो, आप कोई भी साइन है, मैं साइन बना लूँगा, साइन भी वहाँ पे कॉपी कर लूँगा, राइट? आप कोई भी चीज़ है, कॉपी कर लोगे, ओके। लेकिन अगर एक प्रेफर्ड पर्सन का वहाँ पे क्यूआर कोड है, ठीक है? उसका पूरा क्यूआर कोड, आप जब सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड दिया जाता है हमारी तरफ से, जब वो क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे, देन ओपन क्या होता है पता है आपको? आपका सारा डैशबोर्ड, आपने क्या-क्या किया था इस कोर्स में, आपकी आईडी, एंड व्हाट इज़ योर हाउ इज़ योर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती है। इस टाइप का ये सर्टिफिकेट होता है, जो कि वेरिफाइड होता है, जहाँ से ये लिंक्डइन के लिए एकदम ही परफेक्ट होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें इसमें, और ये एक ऑफ़र चल रही है हमारे यहाँ पे कि जो हम रेगुलरली, हमारा ये जो एडवांस एक्सेल का कोर्स है, वो 10,000 में सेल करते हैं। आप कभी भी देख देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे। लेकिन अभी दिवाली के रिगार्डिंग और दशहरा के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ करी है कि ये जो कोर्स है हम अभी 6000 में दे रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। ओके? सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ना, वो हमारे ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। देन वी विल अरेंज अ मीटिंग, और आप जब सारी चीज़ें क्लियरली समझ जाओगे कि कोर्स कैसा है, क्या है और क्या-क्या सिखाया जाएगा, राइट? देन आप वो कोर्स बाय कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके? मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लेना, और जो भी स्टूडेंट वो कोर्स खरीदना चाहता है, ओके, अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है, उनकी हम वहाँ पे मीटिंग ले लेंगे। मीटिंग में सारी चीज़ें कवर करी जाएगी कि क्या कोर्स है, कैसे कोर्स है, और कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कितना पे करना है, इंस्टॉलमेंट, ये वो चीज़ें, एंड देन आपको हम जॉब रेडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ सारी समझने के लिए आप मीटिंग में आ जाना वहाँ पे। आपकी गूगल मीट पे आपको हम सारी चीज़ें समझा देना का, एंड देन आप पेड कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, वही उस ग्रुप में आना। मैं ग्रुप की लिंक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके?
ओके, सो मैंने ग्रुप का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया है। Can we have classes in English? These classes are basis on your preferred language, Madira. If you are saying you want the classes in English, and if someone want classes in Hindi, right? आपकी प्रिफर लैंग्वेज पे आपको क्लासेस मिलेंगे। ओके, सर सर्टिफिकेट मिल चुका है, नाइस सिराज। सर ओनली एक्सेल मिलेगा और कुछ कोर्स मिलेंगे, राइट? अभी देखो, ये आपको भी पता है कि बाकी के कोर्सेस 6000 में तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकते, बट हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस एंड डेवऑप्स। ठीक है, उन पे भी अभी दिवाली के रिगार्डिंग ऑफर चल रही है, अगर उसके लिए भी कोई इंटरेस्टेड हो तो उस ग्रुप में ऐड हो जाना, नो इश्यूज। आपको जब हम कॉल करेंगे देना, आप समझा सकते हो उनको, राइट? ठीक है, वेयर टू फाइंड द सर्टिफिकेट, यू गाइस कैन नॉर्मली मैसेज मी, राइट? अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है क्विज अटेंड करने के बाद भी, तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा एंड आपका सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। पास्ट में कोई ज्वाइन करे हुए अगर यहाँ पे स्टूडेंट हो गए तो उनको पता होगा। यस सर, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, नाइस। ओके, ऐसे ही बुट कैम्प के लिए स्टूडेंट्स, डेमो दिखा दो ना। ओके, संदेश तुम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ प्लीज़। वहाँ पे एक डेमो होता है, एक्चुअली डेमो में सारी चीज़ें क्लियर करी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? जैसे कि पूरा करिकुलम, उसका क्या आउटपुट है वो कोर्स करने का, और आपको अगर ईएमआईज़ करने हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी अवेलेबल होता है, सब कुछ वहाँ पे समझाया जाता है। क्योंकि आप अगर उसको बाहर से ही जज करोगे, आप डेमो में ही नहीं जाओगे, तो ये गलत बात है। आप वहाँ पे जाना एंड देन सारी चीज़ें क्लियर करना। अगर किसी को कोर्स खरीदना है तो खरीदना, अगर नहीं भी तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार डेमो में बैठ के देखना, सो आपको पूरे डाउट तो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मैंने व्हाट्सएप का 2-3 बार यहाँ पे लिंक डाला है, जिसको भी ज्वाइन करना है कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। ओके, सो अभी मुझे लगता है कि सेशन को एंड करना चाहिए। अभी किसी के कोई भी क्यूरीज होगी, ठीक है, लाइक आज का बुट कैंप हो गया, आज की क्विज हो गई, सर्टिफिकेट हो गए, तो जल्दी से मुझे पूछ लीजिए, देन अपन इसको क्लोज कर देते हैं मीटिंग को। ओके, क्विज लिंक दे रहा हूँ, 1 मिनट बस। ओके, क्विज लिंक दे दिया। और कोई क्वेश्चन? कांट डाउनलोड द सर्टिफिकेट। ओके श्रेया, नो इश्यूज, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और आपकी ईमेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपको सर्टिफिकेट भेज दूंगा। दिस सर्टिफिकेट बेनिफिट्स, सिराज, बेनिफिट्स तो हर सर्टिफिकेट का होता है। लाइक अगर आपके पास सर्टिफिकेट, तो ऑब्वियसली आपने वो स्किल कहीं पे सीखी है, पढ़ी है, राइट? आप हमें लिंक्डइन पे आप पोस्ट करना है सर्टिफिकेट ज़रूर, हमारी कंपनी को टैग करके, स्किलेक्टेड को टैग करके, राइट? बहुत कुछ सीखने को मिला। वेलकम, वेलकम भूपेंद्र। हमेशा हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लेके आते रहते हैं गाइज़, हमें लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो करना, वहीं पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं आपको लिंक्डइन का लिंक भेजता हूँ, गिव मी मिनट। ओके, अगले बूट कैंप्स का। सो सारे बूट कैंप के बारे में हम अभी, आप लोग इनरोल हो चुके हो, राइट? मतलब हमारी वेबसाइट पे आ चुके हो, हमारा बूट कैंप अटेंड किया है, तो ऑब्वियसली आपकी मेल आईडीज़ भी हमारे पास रहेगी। आपने मेल आईडी से ही लॉगिन किया था, सो ऑब्वियसली आपको मेल थ्रू सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, नो इश्यूज़। और
वहीं से आप फिर से नेक्स्ट बूट कैम्प की भी अपडेट ले लोगे एंड आ सकते हो, जॉइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने जो लिंक्डइन भेजा है, लिंक्डइन की आईडी भेजी है, वहाँ से आप ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड वहाँ पे आपको कंटेंट मिलता रहेगा कि क्या कोर्सेस है, कैसे कोर्सेस है, एंड कब है बूट कैम्प, क्या डेट है, क्या टॉपिक है, सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और सर्टिफिकेट मिलने पे प्लीज़ लिंक्डइन को हमारे टैग कर लेना। ओके सर, क्विज लिंक अगेन, ओके भेज रहा हूँ। ओके गाइस, तो मुझे लगता है अभी सेशन को एंड करना चाहिए। होप कि सबको सेशन अच्छा लगा होगा एंड जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हो चुके होंगे, आई होप। ओके सो स्टूडेंट, सेशन को एंड करते हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वेलकम उपेंद्र, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग टुडेज बूट कैम्प। सो सेशन को एंड करते हैं गाइस। ओके बाय। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पेड कोर्स लेने हैं लाइक एक्सेल के, जो कि नॉर्मली 10,000 पे होता है, वो आपको मिलेगा। हाँ, मैं व्हाट्सएप की लिंक भेज रहा हूँ, राइट? ओके। ओके, मैंने व्हाट्सएप की लिंक भेज दी यहाँ पे।